स्टार्ट कीजिए मैडम। Okay, sir. Mrs. Sudha Murthy, the chairperson and the Infosys founder member, and most interesting is the author and the writer of our today's lesson. A lesson in life from a beggar. Very interesting lesson, students. Here we are going to study the story of a girl who learned a lesson in life from a beggar. This story is written by Mrs. Sudha Murthy. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Here, writer says, Meena is a girl who is a nice friend of the writer, and she is very different kind of girl. She always remains sad or unhappy. यहाँ बच्चों राइटर हमसे कह रही है कि मीना नाम की लड़की उनकी एक अच्छी सहेली थी। मीना LIC ऑफिस में काम करती थी। वह एक अच्छे पद पर, अधिकारी के पद पर थी और अच्छी खासी तनख्वाह प्राप्त करती थी। But there was always something strange. लेकिन मीना के बारे में कुछ बड़ा ही विचित्र था। उसका जो बर्ताव या उसका जो व्यवहार है, विचित्र ये था, she was forever unhappy. मीना हमेशा ही नाखुश या दुखी रहा करती थी। यहाँ कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स we will see. Salary we all know, जो पेमेंट या जिसे हम कमाई कहते हैं। Strange means weird, मतलब के अजीब या विचित्र। Forever always, हमेशा। Unhappy यानी दुखी रहना या नाखुश रहना। Moving on to, whenever I met her, I would, as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive. Here, Meena is so negative-minded that the writer feels depressed and sad when she meet Meena. यहाँ लेखिका हमसे कह रही है, whenever, जब कभी, I met her, मैं उससे मिलती थी, I would start to feel depressed, मैं निराश महसूस करने लगती थी. It was as though her gloom and cynicism, ऐसा प्रतीत होता था कि उसका दुखी रहना या उसका हमेशा गुस्से में रहना या डिस्ट्रेसफुल रहना मुझ पर भी असर करता था, यहाँ तक कि दूसरों पर भी. She never had anything positive. मीना कभी सकारात्मक बोलती नहीं थी, ना ही सकारात्मक सोचती थी. Some words or the vocabulary. Gloom, feeling of sadness, यानी उदासीनता. Cynicism, a distrustful attitude, यानी किसी पर भी विश्वास न रखने का रवैया. Instance, example, उदाहरण. We will move on. To say on any subject or about any person. For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? मीना किसी के बारे में सकारात्मक नहीं बोलती. उदाहरण के लिए, अगर मीना से कहा जाए कि मीना, या अगर मैं मीना से कहती
कि मीना, क्या तुम जानती हो कि राकेश स्कूल में फर्स्ट आया है? Mina's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. मीना का जो तुरंत एक उत्तर होता इस बात पर, वो कुछ ऐसा होता कि वो राकेश की उपलब्धि या उसकी सफलता को तुरंत से कम आंकने लगती, और उसका जवाब कुछ ऐसा होता कि नेचुरली, यानी स्वाभाविक सी बात है, राकेश के पिताजी स्कूल में टीचर हैं. Some words or the vocabulary: belittle, belittle in the sense किसी चीज के मूल्य को स्वीकार ना करना, उसका अवमूल्य कर देना, उसे कम समझना. To decrease it. Achievement, उपलब्धि, यानी किसी चीज की प्राप्ति. If I said, Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. Here, writer share an example. Whenever writer say to Meena, मीना, श्वेता एक बहुत ही सुंदर लड़की है ना? मीना जो कि एक नकारात्मक स्वभाव की लड़की थी या एक निराशावादी लड़की थी, पैसिमिस्टिक इन द सेंस निराशावादी, जिसमें किसी बात का उत्साह नहीं होता, वो तुरंत कहती कि जब कोई छोटा घोड़ा, छोटी प्रजाति का घोड़ा भी अगर यंग होता है तो वो सुंदर ही दिखता है. इट्स एज that it's age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. मीना का उत्तर होता कि ये तो उसकी उम्र है जिसके कारण वो ब्यूटीफुल दिख रही है. कुछ समय वेट करो, श्वेता बहुत ज्यादा कुरूप दिखने लगेगी. Moving on to the next. Meena, it's a beautiful day. Let's go for a walk. No, the sun is too hot and I get tired if I walk too much. Besides, who says walking is good for health? There is no proof. यहाँ राइटर ने एक और एग्जाम्पल मीना के नकारात्मक एटीट्यूड का दिया है. मीना से कहा जाता कि मीना, बहुत ही सुहाना दिन है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं. मीना का उत्तर होता, नो, नहीं, द सन इज टू हॉट, सूर्य काफी तेज चमक रहा है, काफी गर्मी है. आई गेट टायर्ड, और मैं इसमें थक जाऊंगी. इफ आई वॉक टू मच, अगर मैं ज्यादा टहलने लगी. बिसाइड्स, इसके अलावा, हु सेज वॉकिंग इज गुड, किसने कहा कि टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है? देयर इज नो प्रूफ, इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं. That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot her. See, मीना इस तरह की थी जो अभी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. शी स्टेड अलोन इन अपार्टमेंट, वो अपने एक फ्लैट में अकेली ही रहा करती थी. हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, उसके माता पिता दिल्ली में रहते थे. शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी.
and had the habit of complaining. और उसमें एक आदत थी कि वो हर एक बात की शिकायत करती थी, यानी उसे हर किसी में कुछ ना कुछ दोष नजर आता था. Naturally, she wasn't a very pleasant company. इस तरह का व्यवहार या इस तरह का एटीट्यूड होने के कारण स्वाभाविक है कि किसी को उसके साथ रहना, उसकी कंपनी में रहना अच्छा नहीं लगता था. कोई उसके घर जाना भी नहीं चाहता था. Then one day, एक दिन, Meena was transferred to Bombay. As initially we have read, Meena was an LIC officer. So उसका ट्रांसफर हो जाता है और वो मुंबई आती है. बॉम्बे इज an old name for मुंबई. तो वो ट्रांसफर होकर मुंबई आती हैं. And soon we all forgot her. अब उसके इस प्रकार के नेचर के कारण जब उसका ट्रांसफर होता है, जल्द ही हम सब उसे भूल जाते हैं, है ना. लेखक और उसके सभी फ्रेंड्स मीना को भूल गए. Many years later, I found myself caught in rain at Bombay's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar Ali, a popular department store, waiting for the rain to subside. Suddenly, I spotted Meena. My first reaction was to run even in that pouring rain. Here, an incident. Writer explain. राइटर अपने साथ हुई एक घटना का यहाँ वर्णन कर रही हैं. Many years later, मीना के ट्रांसफर के कई वर्षों बाद, लेटर यानी बाद, राइटर मुंबई आई और मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन इस स्थान पर तेज बारिश में वह अटक गई. It was pouring and I didn't have an umbrella. यह pouring वर्ड का मतलब होता है मूसलाधार बारिश या heavy rain. तो लगातार होने वाली तेज बारिश के कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी और उनके पास छाता नहीं था. वो अकबर अली डिपार्टमेंट स्टोर के पास रुक जाती हैं, वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, और इंतजार करती हैं कि बारिश थोड़ी कम हो जाए. यहाँ सबसाइड इस वर्ड का मतलब है सेटल डाउन, यानी कि थोड़ा सा धीमा हो जाना. इसी दौरान सडनली, अचानक, राइटर मीना को देखती हैं, मतलब मीना के ऊपर ध्यान जाता है और तुरंत ख्याल आता है कि बारिश में भी क्या करना है, मीना से बचकर भागना है. सी स्टूडेंट्स के नेगेटिव एटीट्यूड के वजह से उसके फ्रेंड्स उसे क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. However, I couldn't escape. She had already seen me. यहाँ पर anxious वर्ड का मतलब होता है उतावला होना. लेखिका बहुत उतावली थी और कोशिश कर रही थी कि क्या हो, मीना का ध्यान लेखिका पर ना जाए. अगर मीना उसे देखती तब लेखिका को उससे बात करनी पड़ती और फिर उसकी वही पुरानी हमेशा की शिकायतों को सुनना पड़ता, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली थी, नेवर एंडिंग. However, I couldn't escape. लेकिन लेखिका बच न सकी. एस्केप यानी बचकर निकलना. She had already seen me. लेखिका के समझ में आया कि मीना ने भी उसे ऑलरेडी देख ही लिया है. Caught hold of my hand warmly. What's more, she was very cheerful. मीना ने उसे तुरंत देख लिया, उसके पास भी आ गई और उसका हाथ भी पकड़ा.
मीना देखने में काफी चेयरफुल यानी खुश लग रही थी। Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? मीना उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलकर। पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता है। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो? I explained that I was in Bombay on an official work. मैंने मीना को बताया, लेखिका ने मीना को बताया कि वो मुंबई किसी ऑफिस के काम से आई हुई हैं। Then stay with me tonight, she said. मीना ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज आप मेरे घर पर ही रुक जाओ. Let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare? मीना कहती है, हम बातचीत गपशप करेंगे. क्या तुम नहीं जानती कि पुराने मित्र और पुरानी यादें ये काफी प्रेशियस यानी कि कीमती होते हैं और बहुत ही दुर्लभ यानी कभी कभी मिलते हैं. यहाँ पे प्रेशियस वर्ड मीन्स वैल्यूएबल, रेयर मीन्स एट टाइम्स या जो कभी हमें मिलता है कभी कभी दुर्लभ. I couldn't believe it. Was this really Meena? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. But Meena was really standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. लेखिका बता रही हैं, I couldn't believe it. उन्होंने मीना को देखा और मीना को चेयरफुल यानी कि काफी हैप्पी देखा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ. Was this really मीना? अपने आप से वो मन में सोच रही हैं, क्या ये सचमुच मीना ही थी? I pinched myself hard. Pinched यानी चिकुटी काटना. तो वो अपने आप को क्या करती हैं, थोड़ा सा नोच कर देखती हैं कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ. और तब एहसास होता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं है. जो मेरे सामने खड़ी है वो सचमुच मीना है. वो काफी जोर देकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए हुए हैं. स्माइलिंग, शी इज स्माइलिंग और काफी खुश नजर आ रही है. इन द 3 years, 3 वर्षों में जब मीना और ये साथ थे, शी हैड नेवर बीन इन बैंगलोर. उसे कभी इस तरह से स्माइल करते हुए नहीं देखा. A few strands of grey in her hairs. मीना के बालों की कुछ लटें सफेद हो चुकी थी. उसे देखकर मुझे याद आया कि तब की मीना और आज जो सामने खड़ी है वो मीना, इसमें क्या हो गया है, काफी फर्क आ चुका है. कई वर्ष बीत चुके हैं. There were a few wrinkles in her face. Writers saw some of the wrinkles in the face of Meena. मीना के चेहरे पर कुछ रिंकल्स दिखाई दिए. इससे समझ में आया कि मीना की उम्र थोड़ी बढ़ चुकी है. बट द ट्रुथ वॉज, लेकिन सच तो ये था कि वो अब भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. इसका कारण ये था कि वो बहुत खुश है. फाइनली आई मैनेज्ड टू से, नो मीना, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I'll keep in touch with you. I promise.
writer promises Meena that she will contact her and ask her to give the visiting or the identity card. लेखिका मीना से कहती है, मैं तुम्हारे घर में रुक नहीं सकती क्योंकि आज रात को मुझे डिनर के लिए जाना है, लेकिन आप कार्ड अपना दे दीजिए, मैं क्या करूंगी, आपको कांटेक्ट जरूर करूंगी. फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड disappointed. Let's go and have tea at least. हेलो मैडम, आवाज़ नहीं आ रही है मैडम. मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैडम. वीडियो बंद करो, बाकी के बच्चे वीडियो बंद करो. अतुल शर्मा वीडियो बंद करो बेटा, एक जगह बैठ जाओ, अच्छे से घूमो मत घर में. सर अब आ रही है. हाँ अब आ रही है मैडम. निकी शर्मा वीडियो बंद करो. रोशन यादव, एक मिनट मैडम. हाँ Oh, shoot. सभी बच्चे अपना वीडियो बंद रखेंगे बच्चों. कंटिन्यू कीजिए मैडम. हाँ For a moment, Meena looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. एक समय के लिए मीना थोड़ी सी निराश हो जाती है, लेकिन थोड़ा जोर देकर कहती है, कोई बात नहीं, हम साथ चाय ही पी लेंगे. But Meena, it's pouring. Writer said, Meena, काफी तेज बारिश हो रही है. So what? We'll buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. मीना तुरंत कहती है, कोई बात नहीं, हम एक अम्ब्रेला खरीदेंगे और ग्रैंड होटल में जाएंगे. We won't get a taxi in this rain. We won't get a taxi in this rain. I grumble, so what? We'll walk. लेखिका कहती है, मीना, इस बारिश में हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी. मीना का तुरंत रिप्लाई होता है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, वॉक कर लेंगे. I was surprised. लेखिका आश्चर्यचकित रह जाती है. This wasn't the same Meena I had known. Today, she seemed ready to make any number of adjustments. लेखिका को आश्चर्य होता है
कि ये वो मीना नहीं है जिसे मैं जानती थी। टुडे, आज, ये मीना जो मेरे सामने खड़ी है वो हर तरह के समझौते, एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। आज वो बारिश में चलने के लिए भी तैयार है और वॉक करने के लिए भी तैयार है। We reached the Grand Hotel, drenched. By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. चलते हुए हम ग्रैंड होटल पहुंचे। We were fully drenched. Drenched मतलब होता है पूरी तरह से भीगा हुआ। By then, तब तक मेरे माइंड में, लेखिका के माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कौन है या वो क्या है जिसने इस मीना में, जो कि एकदम निराशावादी थी, ये बदलाव लाया है। I was curious. I was quite curious. मैं जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड थी। मैंने लेखिका ये जानना चाहती थी। Tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so? Writer asked Meena in a friendly way. लेखिका मीना से पूछती हैं कि मीना मुझे बताओ, क्या कोई आकर्षक सा राजकुमार है जिसने तुम में ये बदलाव लाया है? Meena was surprised by my question. No, there isn't anyone like that, she said. मेरे इस प्रश्न से मीना थोड़ी सी आश्चर्यचकित होती है, लेकिन वो तुरंत कहती है, ऐसा तो कोई नहीं है। Then what's the secret of your energy? I asked, like Tendulkar does in the advertisement. A student, previously one ad used to come on television, सचिन तेंदुलकर का, जो कि बूस्ट का एड हुआ करता था, जिसमें कि बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ऐसा तेंदुलकर कहा करता था। और यहाँ पर लेखिका ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी फ्रेंड मीना से पूछा है, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? तो तुम्हारी इस एनर्जी का सीक्रेट क्या है? शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ। मेरी इस बात पर मीना थोड़ा मुस्कुराती है और उसका उत्तर होता है, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ। एक भिखारी ने, बेगर इन द सेंस भिखारी, एक भिखारी ने क्या किया है, मेरे जीवन को बदल दिया है। I was absolutely dumbfounded and she could see it. मीना के इस उत्तर पर मैं पूरी तरह से dumbfounded यानी स्तब्ध रह गई, शॉक्ड रह गई। और इस बात को मीना ने भी नोटिस किया। Yes, a beggar, she repeated as if to reassure me. मुझे सरप्राइज देखकर मीना ने अपनी बात को फिर से दोहराया और मुझे आश्वस्त किया कि यस, तुमने सही समझा, एक बैगर ने ही मेरी लाइफ बदली है। He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. Now, Meena started explaining the incident or the story of sudden change in her life. अब मीना अपने जीवन में बदलाव किस प्रकार से आया वो कहानी लेखिका को बताती है। वो कहानी है जो कि बैगर की है। He was old, वो बैगर काफी बूढ़ा था। Used to stay in front of my house, वो मेरे घर के सामने की सड़क पर रहा करता था। With
his 5-year-old granddaughter. बैगर अपने 5 वर्ष की पोती के साथ रहता था. As you know, तुम तो जानती ही हो, I was a chronic pessimist. Chronic यानी अत्यंत या for a long time. मीना लेखिका से कहती हैं, You know that I was a chronic pessimist. मैं एक बहुत ही निराशावादी लड़की थी. I used to give my leftovers to this beggar every day. मैं घर के बचे हुए खाने से, लेफ्ट ओवर्स यानी बचा हुआ, तो जो बचा हुआ खाना होता था वो मैं प्रतिदिन इस भिखारी को दिया करती थी. I never spoke to him. मैंने कभी उससे बात नहीं की. Nor did he speak to me. ना ही कभी उसने मुझसे बात की. One monsoon day, एक दिन बारिश के मौसम में, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that, because I wasn't even getting wet that day. I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They went hungry, I'm sure. यह बारिश का एक दिन था और मीना लुक्ड आउट ऑफ बेडरूम विंडो. मीना अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखती है. स्टार्टेड कर्सिंग द रेन. कर्स यानी कोसना, और विंडो से ही बारिश को कोसने लगती है. आई डोंट नो व्हाई. वो ऐसा क्यों करती है उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि बारिश का तो उस पर कोई असर ही नहीं है. वो तो घर पर है, ना वो भीग रही है. दैट डे, उस दिन, मीना उस भिखारी को रोजाना का बचा हुआ खाना जो वो दिया करती थी नहीं दे पाई. दे वेंट हंग्री. और वे भूखे ही रह गए. आई एम श्योर. निश्चित रूप से वे भूखे रह गए. What I saw from my window frightened me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. उस दिन विंडो से जो कुछ मैंने देखा, यानी जो कुछ मीना ने देखा, सरप्राइज्ड मी. से देखकर मीना आश्चर्यचकित रह गई. बेगर एंड यंग गर्ल्स वर प्लेइंग. वह बूढ़ा भिखारी और उसकी छोटी पोती खेल रहे थे रास्ते पर, क्योंकि बारिश के कारण ट्रैफिक नहीं था. दे वर लाफिंग. वे हंस रहे थे. क्लैपिंग. तालियां बजा रहे थे. स्क्रीमिंग जॉयसली. और खुशी से चिल्ला रहे थे. एज इफ दे वर इन पैराडाइज. ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो स्वर्ग में है. हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर. बारिश और भूख का कोई प्रभाव उन पर दिखाई नहीं देता. They were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. The beggar and his daughter both were drenched. beggar और daughter पूरी तरह से भीग चुके थे, पूरी तरह से भीग चुके थे. और इसके साथ ही साथ
वो पूरी तरह से खुश भी थे। उन्हें देखकर मीना एनवीड यानी ईर्ष्या करना, उन्हें देखकर मीना को ईर्ष्या होने लगी कि भूखे होने के बाद भी, भिखारी होने के बाद भी और बारिश में भीग रहे होने के बाद भी दोनों के मन में जीवन के प्रति कितना उत्साह है, जेस्ट फॉर लाइफ, जीवन के लिए उनके प्रति कितनी सकारात्मक सोच है। That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had. But they had the most important of all, assets, one which I lacked. उनका वो दृश्य, तालियां बजाना, बारिश में भीगना और खुशी से चिल्लाना, ये जो दृश्य था, इस दृश्य ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने खुद के जीवन के बारे में सोचूं। I realized, और मैंने महसूस किया, I had so many comforts, मेरे पास कितनी सुविधाएं हैं। None of which they had, मेरे पास जो कुछ है उसमें से एक भी चीज उन दोनों के पास नहीं है। But they had the most important of all assets, लेकिन उनके पास सबसे कीमती, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल संपत्ति, असेट यानी वैल्यूएबल या फिर संपत्ति, उनके पास सबसे ज्यादा जो बड़ी संपत्ति है वो मेरे पास नहीं है। कौन सी संपत्ति है? द जस्ट फॉर लाइफ, यानी जीवन के प्रति उत्साह। They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. उन्हें देखने के बाद I felt ashamed of myself. मुझे अपने आप पर थोड़ी शर्म आई। That means Meena felt ashamed of herself. मीना को अपने आप पर शर्म आई। I even started to make a list of what I had. और उसके बाद मीना क्या करती है? वो लिस्ट बनाती है कि उसके पास क्या क्या है and what I did not have, और उसके पास क्या क्या नहीं है। I found I had more to be grateful for than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. List बनाने के बाद I found, मीना ने पाया, I had more to be grateful. मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मुझे grateful यानी कि कृतज्ञ यानी आभार मानना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, for than most people could imagine, कि मेरे पास इतना कुछ है जितना बहुत से लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पाते। That day, उस दिन I decided, मैंने निर्णय लिया to change my attitude towards life. मैंने जीवन के प्रति अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। Using the beggar as my role model, और मैंने उस भिखारी को ही अपना आदर्श मान लिया। After a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change. काफी समय ठहरने, पॉज, after a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change. काफी समय तक चुप रहने के बाद, पॉज यानी रुक जाना
या ना बोलना। काफी समय शांत रहने के बाद मैंने मीना से पूछा हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, उसे बदलने में कितना समय लगा। Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. Meena replied, once this realization dawned, जैसे ही मुझे इन बातों का एहसास हुआ, realization dawn यानी एहसास होना, it took me almost 2 years, मुझे करीब करीब 2 वर्ष लग गए to put the change into effect, अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए। Now nothing matters. I'm always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, in every person. Meena further says, now nothing matters. अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm always happy. मैं हमेशा खुश रहती हूँ। And find happiness in every small thing. और हर छोटी चीज में, in every situation, हर परिस्थिति में, and every person, और हर व्यक्ति में मैं खुशी ढूंढती हूँ या मुझे उन्हें मिलकर खुशी होती है। Did you give any Guru Dakshina to your Guru? I asked. Writer asked Meena. For such a मैडम drastic. टाइम हो गया है, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं मैडम। Okay, so tomorrow is also my lesson, na? So I'll continue tomorrow for the activities. ये आवाज नहीं आ रही है मैडम। सर कल भी मेरा ही है तो मैं कल फिर कंटिन्यू कर लूंगी। हाँ हाँ, तो अभी क्या करना है, लेक्चर क्वेश्चन आंसर लेना है या स्टॉप करना है? सर 2 मिनट स्टॉप क्योंकि अभी एंडिंग रह गया है थोड़ा सा। ओके, तो बंद कर दिया जाए। ओके सर। ओके ठीक है। तो बच्चों, आपको किसी को कुछ पूछना है क्या? तो हाथ उठा लो, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। मैडम कल कंटिन्यू करेगी क्योंकि कल भी मैडम का ही डे है। ठीक है मैडम, लेक्चर स्टॉप कर दें। हाँ ओके सर।